Next question is question number 15th. Using an AC voltmeter, the potential difference in the electric line in a house is read to be 234 volts. जब कभी भी वोल्टमीटर रीड करता है, which reading it is? RMS voltage. So it is 234 volt. If the line frequency is known to be 50 cycles per second, it is hertz. The equation of the line voltage is, what is the equation? V is equal to Vm sine of 2 pi nu into T. What is the maximum voltage? Vrms is equal to कितना होता है? Vm upon root 2. So what is Vm? 234 into root 2. Root 2 is 1.4142. multiply करिए. It is coming as 331 volts. Sine of 50 into 200, 103.1415, 314. So it is sin 314t, या इसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे, so it is written as 331 sine of 50 into 200 by t. ये cos भी हो सकता है, जरूरी नहीं है sin ही हो. करेक्ट आंसर इज बीटा. 16th question number. A voltmeter connected across an AC supply reads the voltage as 100 volt. The peak to peak voltage of AC is. ये कौन सी रीडिंग है? Which reading 100 volt is? RMS. What is maximum? 100 root 2. And what is peak to peak? That is equal to 2 times 100 root 2. So answer is 200 root 2 volts. Simplify करिए. C is the 282.8 volts. Question number 21. An AC source is 120 volt, 60 hertz. The value of voltage after 1 upon 720 second from start will be. So इसके लिए आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. How it is? वोल्टेज की इक्वेशन पहले बना लीजिए. AC सोर्स का वोल्टेज है 120. So what is the equation? 120 root 2. रूट 2 से मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम बनाने के लिए. E is equal to EM sine of omega. Omega is 2 pi into nu. 60 hertz is the frequency. 2 pi into 60 hertz into t. ओके, ये आपका इक्वेशन है AC का. t की वैल्यू डालिए, कितनी है? 1 upon 720. So it is sine of 2 pi into 60 into 1 upon 720 is the value of t. Simplification. 0 0 cancel out. 6 1s are 6, 6 2s are, that is 6 times. What is sine pi by 6? Sine pi by 6 का वैल्यू बोलिए कितना है? 1 by 2, 30 डिग्री है ना. So it is 1 by 2. 2 से cancel out 60 times. What is the value? It is 60 root 2. And on simplification, 60 root 2, correct answer is A, 84.8 volts. Next question is 25th. An AC circuit has the frequency 50 CPS. 50 cycles per second, or you can say it is 50 hertz. The time taken by the current to reach from 0 to a value. साइनोसोडल वेव ही लेके चलेंगे हम. दिस इज द कंडीशन. टू 1 upon root 2. 1 upon root 2 कितने एंगल तक पहुंचती है साइन वेव? पाई बाई 4. What is the value sin pi by 4? It is 1 by root 2 of its maximum value. Maximum value is 1. So
ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, आपको क्या करना चाहिए, इसका टाइम पीरियड नोट करना चाहिए पहले। व्हाट इज द टाइम पीरियड? इट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट इज 1 अपॉन 50 सेकेंड। इसको मैन्युअली सॉल्व कर ले, इक्वेशन बनाएंगे तो टफ हो जाएगा। फिर देखिए टाइम कैसे, पूरी साइकिल कितने एंगल की थी? 2 पाई एंगल की थी, राइट। 2 पाई कंप्लीट करने में व्हाट इज द टाइम टेकन? 1 अपॉन 50 सेकेंड्स। 1 रेडियन कंप्लीट करने में व्हाट इज द टाइम टेकन? 1 अपॉन 50 इंटू 1 अपॉन 2 पाई। पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2। सो पाई बाई 4 कंप्लीट करने में व्हाट इज द टाइम टेकन? 1 अपॉन 50 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 4। कैंसिल कैंसिल, 1 अपॉन 50 to 100, 100 into 4, 400. Your answer will be 1 upon 400 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.0025 सेकेंड। सी इज द आंसर। ये तो ठीक है, मैन्युअली सॉल्व हो गया। अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में लेना पड़ता तो क्या करते, देखिए। फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द वेव फॉर्म। E is equal to its maximum value sine of frequency is given 2 pi into frequency into t. Okay. E is 1 upon root 2 times its maximum value. So simplify it. That is sine of 100 pi t. E naught कैंसिल। साइन ऑफ दिस इज 1 बाय रूट 2। ये कितने एंगल का साइन है? व्हाट इज इट? प्रिंसिपल वैल्यू साइन पाई बाई 4 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी। साइन एंड साइन दोनों तरफ से कैंसिल। पाई बाई 4 इज इक्वल टू 100 पाई टी। पाई एंड पाई कैंसिल। T is equal to 100 into 4. What is it? 400 seconds. ये आपका इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता है, ये मैन्युअली सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26. A 220 volt DC is equivalent to an AC of amplitude 220 volt DC. What is it equivalent to AC? RMS value. RMS value of AC is also called DC value of AC. Remember, इसको ऐसे बोला जाता है नॉर्मल उसमें, DC value of AC. So, what is the RMS value of the voltage given? It is given as 220 volt. आपको एम्पलीट्यूड पूछा है, what is the amplitude? रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। What is the answer? 220 root 2 volt. A is correct answer. 27th. The average value of a full rectified sine wave is 10 volt. Its RMS value will be. Full rectified means, rectifier means which convert AC into DC. Normal condition में ऐसा बोला जाता है। So, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की साइन वेव देखते हैं, इट कंसिस्ट प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ एंड सो ऑन। फुल वेव रेक्टिफायर मींस प्लस प्लस रिमेन्स सेम, माइनस आल्सो बिकम्स प्लस, प्लस रिमेन्स प्लस, माइनस आल्सो बिकम्स प्लस। इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कोई लॉस हुआ क्या? नथिंग, बस साइन बदल गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। सो वेव फॉर्म की अवेलेबिलिटी जो है, द टाइम फॉर विच द वेव फॉर्म इज अवेलेबल, द सप्लाई इज अवेलेबल, इज सेम। सो इसमें और हम आरएमएस वैल्यू जब डिफाइन करते थे उसमें देयर इज नो चेंज। फॉर्म फैक्टर कितना है बताइए? फॉर्म फैक्टर कितना है? 1.111। व्हाट इज रिप्रेजेंट आरएमएस वैल्यू जो आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, इट इज गिवन एज 10। सो व्हाट इज इट?
मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज 11.11 volts. Beta is correct answer. Question number 28. For half wave rectified sine wave, the RMS value will be. Half wave में plus half is available, but this minus half is not available. या minus available होगा तो plus available नहीं होगा. आपको आउटपुट AC का इस टाइप से मिलेगा. After each half cycle, the output we will obtain. So simple rule है, एक साइकिल हट गई है, केवल हाफ साइकिल आपको मिल रही है, ये अल्टरनेट हाफ साइकिल्स मिलेंगी. सो क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, Vm/√2, इसका भी हाफ कर दीजिए, दैट इज हाफ ऑफ दिस Vm/2√2. C is correct answer. Next question, question number 30. The phase difference between two waves E is equal to Em sin 314t minus pi by 4 and E is equal to Em sin 314t plus pi by 3 will be. What is the phase difference? Maximum value, sin of frequency term, और ये phase होता है. ये नॉर्मल शेड्यूल से माइनस पाई बाई 4 एंगल पीछे चल रही है वेव, ये प्लस पाई बाई 3 एंगल आगे चल रही है वेव. जैसे कि अगर एक रेस स्टार्ट हुई, लोगों से बोला गया आपको एक सर्किल में मैराथन है, दौड़ लगानी है, मान लीजिए इस तरह से, हाँ इनको दौड़ना है, अलग अलग ट्रैक्स पे लोगों को दौड़ना है इस तरह से, मान लीजिए. अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, जो पर्सन शेड्यूल टाइम से स्टार्ट हुआ एट t इक्वल टू 0, इट्स पोजीशन इज 0. सो उसकी इक्वेशन आप किस तरह से देंगे, E इज इक्वल टू Em साइन ऑफ 314t. पर कई बार रेस स्टार्ट होती है, पार्टिसिपेंट्स लाइन पे खड़े हो गए, 1 2 और दौड़ गए, 3 बोला ही नहीं या फायर किया ही नहीं और उन्होंने दौड़ लगा दी. होता है ना कई बार ऐसा. सो अगर कभी ऐसा हुआ, मान लो कि 1 2 और दौड़ गए वो, फिर उसने बोला 3, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स 3 बोल दिया, सब दौड़ गए, फिर इसने दौड़ लगाई. सो व्हाट हैपेंड, जो 3 बोलने के पहले दौड़ गया वो लीड कर रहा है, वो आगे चल रहा है शेड्यूल टाइम से. भाई 1 2 ये दौड़ गया, तो जब t इक्वल टू 0 पोजीशन यहां थी, ये आगे ऑलरेडी लीड कर रहा है प्लस पाई बाई 3. मान लो अगर आपने पूरे एंगल को 360 में डिवाइड किया, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का, व्हाट इज पाई बाई 3, 60 डिग्री. सो एट t इक्वल टू 0 ये वेवफॉर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के रास्ते में यहां तक पहुंच चुकी थी, लीड कर रही थी. और माइनस पाई बाई 4 माइनस 45 डिग्री जो दूसरी वाली वेवफॉर्म है, जब आपने t इक्वल टू 0 पे इसको यहां होना चाहिए था, पर वो शेड्यूल टाइम से पीछे चल रही है. कितने एंगल, पाई बाई 4. इसको बोलते हैं फेज. प्लस मींस लीडिंग फेज, माइनस मींस लैगिंग फेज, याद रखना. अब आपको पूछेंगे कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो ऑब्वियसली दिस इज 60 डिग्री और दिस इज 45. दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है. और नहीं तो वेव फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो जो भी कन्वीनियंट पड़े, इस पूरे में से that is phase difference is equal to 314t plus pi by 3 minus करिए this 314t minus of minus plus pi by 4. ये टर्म आपस में कैंसिल होना चाहिए. सिंप्लीफाई करिए, 60 plus 45 कितना, 10
5 डिग्री, या इसको रेडियन में चेंज कर लें, दैट इज इक्वल टू 4 3 12, 4 प्लस 3 7 पाई बाई 12 is the phase difference of the two waves. Delta is correct answer 105 डिग्री. एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, दोनों में या तो दोनों साइन हो या तो दोनों कॉस हो. इन केस अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, छोटा सा चेंज कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, em cos ऑफ दिस. अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम. आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन. साइन का कॉस से आप कंपेयर नहीं कर सकते. अगर आपको दो बच्चों की हाइट में कंपेयर करना है, या तो आप दोनों को जमीन पे खड़े कर दो, एक ही लेवल होना चाहिए ना, और फिर कंपेयर करो ये बड़ा है ये छोटा है, या तो दोनों को एक स्टूल पे खड़ा कर दो एक ही हाइट के, तब आप कंपेयर करिए ये बड़ा ये छोटा है. अगर आपने क्या करा, इसको एक स्टूल पे खड़ा कर दिया, रेफरेंस फ्रेम इज चेंज्ड, हाइट इज चेंज्ड, और इसको आपने जमीन पे खड़ा कर दिया, अब आप कंपेयर करने लग गए कि ये तो बड़ा है. क्लियर, समझ में आ रहा है ये बात? तो आपको दोनों की इक्वेशन सेम फॉर्म में लानी चाहिए. इजी पड़ता है कॉस को साइन में चेंज करना. क्यों, ये भी बता रहा हूं, क्योंकि साइन 90 प्लस करने से वेवफॉर्म पलटती नहीं है. देखना, ऐसे भी साइन चेंज हो सकता है कॉस में, और 90 माइनस 314t प्लस पाई बाई 3 ऐसे भी चेंज हो सकती है साइन में. ओके, ये देखना. लेकिन इसमें क्या फायदा है, इसमें जब आप प्लस का साइन लेते हैं, दिस टर्म रिमेन्स पॉजिटिव, और इस इक्वेशन को आप रीराइट करके लिख सकते हो em साइन ऑफ 314t आगे ले लो, और फिर इन दोनों फेज को ऐड कर देना, जो भी आएगा वो आप यहां पर लिख देना, ये पॉजिटिव रहा. इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, देखना, em साइन ऑफ 314t है, यू हैव टू राइट इट माइनस 314t और माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3. ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये माइनस का साइन, either you should take minus sign common from here, आपको माइनस का साइन कॉमन लेना चाहिए यहां से, 314t माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस. ये इस तरह से चेंज हो जाएगा. अब इसमें प्रॉब्लम आ गई है, जब भी किसी भी वेव फॉर्म में माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है, इफ साइन इज दिस, व्हाट इज माइनस साइन, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाफ बिकम्स माइनस हाफ, माइनस हाफ बिकम्स प्लस हाफ, वेव फॉर्म 180 डिग्री से पलट जाती है. यू कैन नॉट कंपेयर नाउ. अब आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये माइनस साइन के कारण इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते. सो बेस्ट होता है पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखना. सो अब इसके फेस को कंपेयर करेंगे, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर वाली वेव नॉर्मल और ये 314 और ये इतना, दैट मीन्स पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, इस फेज में से ये वाला फेज माइनस ऑफ माइनस प्लस पाई बाई 4, ये कर दीजिए. ये था 105, 105 में 90 और ऐड कर देना, बोलना कितना आ रहा है, आंसर विल बी 195 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस. दिस वेव इज लीडिंग अहेड बाय दिस वेव, ये पीछे चल रही है, ये आगे चल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45th.
an AC is connected across a resistance of 10 ohm. The heat produced in the resistance is 100 watt. The RMS value of current and voltage of applied AC is, so simple, power is equal to normal I square R. In DC circuit, it is the power. In AC circuit, power is equal to I square, but this is RMS value. Remember always. So power dissipation is given as 100, or this is I RMS square, and resistance is 10. Cancel. What is the RMS value of current? It is root of 10 amperes. It will come as 3.16 एम्पियर. वोल्टेज निकालना है, सो चाहे तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर ले, या V इंटू आई इज वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स ला. पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. सो 100 इंटू 10 और पूरे का रूट, दिस इज RMS वोल्टेज, एंड इट इज कमिंग एज 31.6 वोल्ट. दूसरा रास्ता ये था मेरे पास, VRMS is equal to IRMS into R. Best, it is given as 3.16 into 10. What is the answer? 31.6. Correct answer is A. Next is power dissipation in AC circuit. Most important it is. In DC, what is the power dissipation? P is equal to V into I. There is no change of current, there is no change in sign, there is no lagging leading of the current and voltage. But in AC, एक तो RMS वैल्यू का फर्क पड़ रहा है, वो तो ठीक है, हो जाता है. दूसरा फर्क पड़ता है फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज का. मैं अभी आपको अभी समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं. लेट द पोटेंशियल इन AC सर्किट इज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. ये रेफरेंस टाइम से, शेड्यूल टाइम से एकदम ठीक ठीक चल रहा है. T इक्वल टू 0 पे 0 है, और इसका देयर इज नो लैगिंग, नो नीडिंग. ये रेफरेंस है आपका वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. मान लीजिए करंट इन द सर्किट, इट इज गिवन बाय द इक्वेशन Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुछ सर्किट्स करंट को लैग कराते हैं, जैसे इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं, उसमें करंट पीछे चलती है वोल्टेज से, लैग. एंड कैपेसिटिव जो सर्किट्स होते हैं उसमें लीड करती है, आगे चलती है. सो मैं दोनों के लिए ये डेरिवेशन करना चाहता हूं कि लेट द करंट इक्वेशन इज गिवन एज Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई. व्हाट इज ओमेगा टी? थीटा. इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, V इज इक्वल टू Vm साइन थीटा, एंड करंट इक्वेशन इन द सर्किट इज Im साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. ये करंट का इक्वेशन है. इस कंडीशन में व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट? नॉर्मल कंडीशन में आप बोलते थे पावर डिसिपेशन V इंटू आई. अब यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V, इंस्टेंटेनियस करंट है I, then we define instantaneous power dissipation in the circuit. It is equal to V into I. Instantaneous मतलब उस समय, at that time. फोटो देखा, अरे ये तो बहुत छोटा है, इतना सा बच्चा है, इस वक्त का फोटो है, अभी तो वो बड़ा हो गया. वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये इंस्टेंटेनियस फोटो था जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था. इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट टाइम. सो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन किसी भी समय जब आप T की वैल्यू डाल दोगे तो उस समय करंट कितनी थी, उस समय वोल्टेज कितना था, उस समय सर्किट में कितनी पावर डिसिपेशन होती थी. दैट इज P. P इज इक्वल टू V इंटू आई. इक्वेशन डालिए, V इज इक्वल टू Vm साइन थीटा एंड I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. ओके,
What is instantaneous power dissipation? It is Vm Im sine of theta into sine of theta plus phi. अब अगर आपको एक साइकिल में फॉर वन कंप्लीट साइकिल कितने एंगल तक जाती है? 0 से 2 पाई तक जाती है. अगर आपको कंप्लीट एवरेज पावर डिसिपेशन निकालना है, सो क्या बोलेंगे आप? एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? 2 पाई तक. इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन डिवाइडेड बाय स्पान, दैट इज 2 pi minus 0, can be written as 0 to 2 pi, and this 2 pi is constant out of the integration. बाहर ले सकते हैं. P की जगह you can write Vm Im sin theta, और इसको ओपन कर सकते हैं फॉर्मूले से. sin a plus b फॉर्मूला, what is it? sin a cos b plus cos a sin b into d theta, right? Can be written as average power dissipation in one cycle. Vm Im is constant taken out of the integration divided by 2 pi. इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई करिए तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई डी थीटा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन फाई डी थीटा. Average power dissipation in one cycle, Vm Im upon 2 pi integration 0 to 2 pi. Now here cos phi is constant taken out of the integration. Sin square theta d theta का इंटीग्रेशन करते समय आप क्या लिखते थे? It is 1 minus cos 2 theta by 2 d theta plus here sin phi is constant taken out of the integration. 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड कर दिया. व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? sin 2 थीटा d थीटा. ओके, कैन बी रिटन एज Vm Im upon 2 pi इंटीग्रेशन cos phi into 1 by 2, ये 2 भी बाहर ले लीजिए. इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 डी थीटा माइनस फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन cos phi अपॉन 2 सेकेंड फैक्टर 0 से 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा प्लस दिस इज sin phi बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई sin 2 थीटा डी थीटा. मैंने आपको बताया था फॉर एनी साइन और कॉस वेव व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर वन कंप्लीट साइकिल? इट इज 0. सो दिस इज इक्वल टू Vm Im अपॉन 2 पाई cos phi by 2. What is the integration of 1 theta between the limit 0 to 2 pi? Now 0 to 2 pi cos 2 theta d theta, this will be 0, and 0 to 2 pi sin 2 theta d theta, this will be 0. So दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे आपके पास, बचेगा केवल इतना. That is equal to average power dissipation Vm Im upon 2 2s 4 pi into cos phi upper limit 2 pi minus lower limit 0 is equal to Vm Im upon 4 pi cos phi into 2
2 पाई से कैंसिल कर दीजिए, 2 times. Now, very, very important it is, what is the average power dissipation in one cycle of AC circuit? That is given as Vm Im upon 2 cos phi, right? Vm Im को मैं क्या बोल सकता हूं? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बाय 2 इंटू cos phi. ये जो 2 है मैं Vm को दे दूं कि Im को दे दूं? किसको दे दूं? Vm को दूंगा तो Im झगड़ा करेगी, Im को दूंगा तो Vm झगड़ा करेगा. क्या करें अपन? दोनों को आधा आधा बांट दें. √2 इसको दे दीजिए और √2 इसको दे दीजिए. दैट इज व्हाट? cos phi. And what is Vm by √2 called? Vrms. Very good. So what is the power dissipation? Most important, it is Vrms Irms into cos of phi. AC में पावर डिसिपेशन RMS वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है. फर्स्ट थिंग, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन देम. इनके बीच का फेज एंगल कितना है? cos phi it decides the power in AC circuit. That's why cos phi is called power factor of AC circuit. Most important. In case the angle between current and voltage is 0, मतलब डिनोट करेंगे फेजर डायग्राम वाइज. सो जो डायरेक्शन वोल्टेज का है वही डायरेक्शन में करंट चलती है. देयर इज नो लैगिंग, देयर इज नो लीडिंग. सो व्हाट इज द पावर डिसिपेशन? दैट इज इक्वल टू cos 0 is 1, it is RMS voltages का multiplication. Second point, most important, if the phase angle between voltage and current is 90 degree, आगे भी चल सकती है 90 डिग्री करंट और पीछे भी चल सकती है 90 डिग्री करंट. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज टेकन एज नेगेटिव. व्हाट इज cos by 2? 0. इन दोनों ही कंडीशंस में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, पावर इन द सर्किट विल बी 0. सरप्राइज करिए, करंट भी फ्लो हो रही है सर्किट में, पोटेंशियल भी आपने लगा के रखा हुआ है, पर सर्किट में पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा. व्हाट इज द पावर डिसिपेशन? 0. ओनली पॉसिबल इन AC. ये भी पॉसिबल है कि अगर 90 डिग्री का चाहे आगे चले करंट या पीछे चले, एवरेज पावर डिसिपेशन वुड बी 0. मोस्ट इंपॉर्टेंट का मार्क. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज AC थ्रू प्योर रेजिस्टेंस. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Resistance of value R ohm is connected across voltage supply V is equal to Vm sin omega t. Maximum value Vm volt, angular frequency is omega. When DC is supplied, say in resistance R, if current flowing through the resistance is I ampere, voltage across the resistance is V volt. जैसे जैसे वोल्टेज राइज करता है वैसे वैसे करंट भी राइज करती है. इसमें राइज और डीके तो होता नहीं है, सिंपल करंट फ्लोज, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, करंट फ्लोज. डायरेक्टली रिलेशन होता है. व्हाट इज द पावर डिसिपेशन? पावर डिसिपेशन इज V into I. This much watt is the power dissipation. But here current is increasing as the voltage is increasing, current is decreasing as voltage
वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? जरूरी नहीं है कि अगर आपने वोल्टेज लगा के रखा हुआ इस तरह से तो करंट भी इस तरह से चेंज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पे क्या है देखते हैं, अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में वेव फॉर्म को प्लॉट करोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, वोल्टेज का वेरिएशन इस तरह से है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज सेम, इसके अक्रॉस वही वोल्टेज डेवलप होगा जो ये वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसमें ओम्स लॉ लगता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR जो डीसी में यूज करते हैं आप, सेम पैटर्न पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डेवलप्ड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इनटू रेजिस्टेंस यू कैन यूज इन AC. So what is current flowing? Current flowing is simple, V by R. वोल्टेज का वेरिएशन का फॉर्मूला Vm sin of omega t divided by R. This is voltage maximum divided by some constant R. It is current maximum sin of omega t. ये आ गया करंट का इक्वेशन। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, वोल्टेज इक्वेशन एंड करंट इक्वेशन, Vm Im sin omega t sin omega t, इसका मतलब क्या हुआ? There is no lagging, there is no leading of the current with the voltage. Current flows in phase with the voltage. अगर करंट की कोई मैक्सिमम वैल्यू आप मान ले कुछ ऐसी, तो जिस मेथड से वोल्टेज इंक्रीज हुआ था उसी टाइप से करंट भी इंक्रीज होगी, उसी टाइप से करंट भी सर्किट में चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर मैक्सिमम वैल्यूज कितनी कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, एक बिना स्केल के मैंने ऐसे प्लॉट करके बताया। फेज डायग्राम, फेज मतलब वेक्टर डायग्राम। अगर आप बोलते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 दिस इज द डायरेक्शन ऑफ RMS वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा दिस द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ RMS करंट, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। सो इन रेजिस्टेंस व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? बोर्ड पे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 0। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट? यूनिटी is called 1. And what is the power dissipation in AC circuit? That is equal to simple Vrms into Irms cos phi. Cos phi is 1. This is the power dissipation in resistive circuit. इसको बोलते हैं AC through pure resistance. Next concept is AC through pure inductance. Now it will be clear why I am asking for phase angle, why I am asking for power factor, current का equation, voltage का equation हम क्यों define कर रहे थे, अब clear होगा आपको। देखिए, AC through pure inductance is what? Inductance of self-inductance L is connected across AC. There is no resistance in the circuit. Simple. Pure का मतलब होता है without any resistance, without any leakage, like this. When current flows into it, AC continuously change हो रही है, ओमेगा की स्पीड से चेंज हो रही है लगातार। What happened? जब इसका फ्लक्स इससे खुद से लिंक होगा, so EMF developed is what? VL. Okay, this is called self-induced EMF. VL आप बोलते थे, इट इज E, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला याद है, -L di बाय dt। ओके, अब ये जो VL का नेचर है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का नेचर है, वो अप्लाइड वोल्टेज के एंटी होता है, लेन्स लॉ, इट ऑलवेज अपोजेस। सो मैं लिख सकता हूं VL इज एंटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज माइनस ऑफ V। सो अगर मैं यहां पर या यहां पर पुट करता हूं माइनस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इट इज -L di by dt, माइनस माइनस कैंसिल, ये अप्लाइड
चेंज हो गया। मेरे को करंट की इक्वेशन निकालनी है जबकि वोल्टेज अभी भी रेफरेंस लिया जा रहा है, V इज इक्वल टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। तीन केसेस होते हैं, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। तीनों की कंपेयर करने के लिए आप वोल्टेज की इक्वेशन को रेफरेंस मानते कि इट इज इन टाइम, ये टाइम से चल रही है, V इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। अब करंट की इक्वेशन यहां से निकालना चाहिए मेरे को, V dt, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, it is equal to L is transferred here is equal to what, di। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन di is equal to इंटीग्रेशन V by L dt। दिस इज I is equal to V का इक्वेशन डाल दीजिए, व्हाट इज इट, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन L dt, that is equal to Vm by L is constant taken out of the integration, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कितना, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। करंट इक्वेशन I is equal to Vm अपॉन ओमेगा L, और क्या बचा, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब आपको कंपेयर किससे करना है, वोल्टेज से, किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए ईदर आई शुड यूज पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई थीटा। देखना, मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्म, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा में कन्वर्ट, लेकिन ये माइनस का साइन भी एब्जॉर्ब करना है मेरे को, तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हाट इज इट, इट इज आल्सो कॉस थीटा। आई विल प्रेफर दिस। क्यों प्रेफर कर रहा हूं, देखना, I इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L साइन ऑफ, मैंने लिखा है इसको साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मींस इट इज ओमेगा टी, और ये माइनस का साइन अभी आप बाहर ही छोड़ दे, ये बाहर छोड़ दे साइन माइनस का, ओके। अब इस माइनस साइन को आप अंदर ले जा सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L। ये माइनस का साइन माइनस का था, व्हाट इज माइनस साइन थीटा, इट इज साइन ऑफ माइनस थीटा। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा टी आगे आ गया और पाई बाय 2 पीछे चला गया। इट इज नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन इजीली कंपेयर इट, Vm अपॉन ओमेगा L साइन ऑफ, इट इज ओमेगा टी माइनस, ये क्या है, फेज एंगल है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, करंट। इसकी कंपेयर करना चाहे तो मैंने कंपेयर किया जो पिछली बार इक्वेशन आ रही थी, y इज I इज इक्वल टू Vm बाई आर साइन ओमेगा टी से, ठीक है। Vm इज Vm, I इज I, ये ओमेगा L ये किसके बिहेवियर के जैसा एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस का जैसे बिहेवियर था वैसे एक्ट करेगा। साइन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कितना है, पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक नई क्वांटिटी हमने डिफाइन करी, दैट इज डिनोटेड एज x, पर्टिकुलरली फॉर इंडक्टेंस है तो इट इज XL। व्हाट इज XL, इट इज ओमेगा L। व्हाट इज दिस XL इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस के जैसा ही, व्हाट इज इट, रिएक्टेंस। बट रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन सिर्फ
AC में करेगा, इट इज ओमेगा L. व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, और इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू L. ये बोलता है कि मैं रोकूंगा जरूर करंट को, जैसे रेजिस्टेंस रोकता था, लेकिन मैं तभी रोकूंगा जब उस आने वाली करंट के पास फ्रीक्वेंसी होगी. इफ इट इज DC, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC? 0. 0 आप डालिए, कितना है XL? 0. अगर करंट सीधे सीधे आएगी मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, पूरी पास कर दूंगा 100%. लेकिन अगर करंट ज्यादा उछल कूद करेगी, फ्रीक्वेंसी है ना, ऊपर नीचे उछलेगी, तो मैं उसको रोकूंगा. उछलने वाली करंट को मैं रोकूंगा. और उस रेजिस्टेंस को बोला गया रिएक्टेंस, एंड पर्टिकुलरली इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडक्टेंस. सो दिस XL, इसका पूरा नाम होता है इंडक्टिव reactance. Very, very important. It is directly proportional to the frequency of applied voltage. Okay, is it clear or not? इसका यूनिट देखिए क्या होगा. डायमेंशन वाइज पूरा सेम इक्वेशन चल रहा था, तो इसका भी यूनिट ओम ही आएगा. What is its unit? Its unit is also equal to that of resistance, that is ohms. If you plot the diagram, आपने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t. करंट का इक्वेशन आया, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. So if voltage is changing like this, इस तरह से वोल्टेज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वोल्टेज का कर्व बनाया. सो करंट क्या कर रही है? 90 डिग्री पीछे चल रही है. पीछे चलना मतलब लेट स्टार्ट होना. ये पूरा यहां से यहां तक 1 साइकिल 2 पाई का था, हाफ साइकिल पाई का है, और उसका भी हाफ पाई बाय 2 का है. अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लेट स्टार्ट होगा. लैग करना मतलब बाद में स्टार्ट होना. और करंट की जो वेवफॉर्म आएगी, इट विल बी लाइक दिस, हमेशा 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चलती हुई नजर आएगी. इसको यहां से आगे ऐसे कंप्लीट कर दीजिए. ओके, दिस इज करंट वेवफॉर्म, दिस इज voltage waveform. There is a lagging of current by voltage by an angle of 90 degree. Most important diagram. अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस टाइम से बताता हुआ बनाते हैं like this, करंट लैग कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल इज टेकन एज नेगेटिव, तो ये आप बताओगे किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन. पर्टिकुलरली दिस इज VL, दिस इज IL. इज इट क्लियर? व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट? इस कंडीशन में पावर फैक्टर सर्किट का कितना होगा? व्हाट इज इट? cos pi by 2. cos pi by 2 is 0. Most important, if power dissipation in pure inductance is measured, ध्यान से सुनना, most important, what is the power dissipation in pure inductance? It is 0. अगर आपको AC को ब्रेक लगानी है, AC को रोकना है, तो रेजिस्टेंस से रोकने से क्या होगा? पावर डिसिपेशन होगा, लॉस होगा एनर्जी का. बेस्ट है आप इंडक्टेंस लगा के रोके. इंडक्टेंस लगा के रोकने से क्या होगा? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी? फॉर्मूला डाल सकते हैं, V RMS इज इक्वल टू I RMS
इंटू आर, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ कैन बी यूज्ड इन एसी बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ आर बाय एक्स। दोनों में एक्सएल भी आएगा तो, और आगे देखेंगे तो एक्ससी भी आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आएगा। तो आप करंट को रोक सकते हो लेकिन विदाउट एनी लॉस। अगर ये प्योर इंडक्टेंस है तो ये करंट को कम करेगा, रोकेगा, पर बिना किसी लॉस के। इससे एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। घर में ट्यूबलाइट लगी होती है आपके, ट्यूबलाइट में चोक क्या होता है, व्हाट इज चोक, यही होता है, दिस इज चोक कॉइल। चोक कॉइल में एक फेराइट की कोर होती है, आयरन की कोर होती है, और उसके ऊपर वाउंड किया जाता है वायर। कभी आप ट्यूबलाइट को निकाल करके देखना तो उसके अंदर चोक कॉइल, ये आपकी चोक कॉइल बन गई। ये तार ऐसे से निकाल लिया यहां से, ये हो गया चोक। चोक में आप देखिए दो वायर निकले होते हैं बाहर की तरफ, दिस इज नथिंग इंडक्टेंस, पर इतने वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। सो व्हाट इज चोक कॉइल, चोक कॉइल इज हाई इंडक्टेंस, एल बहुत ज्यादा है, एंड लो रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता है इसमें। फॉर चोक कॉइल पावर फैक्टर इज नियरली जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं हो पाता क्योंकि इस वायर की, कॉपर वायर की कुछ रेजिस्टेंस होती है। सो व्हाट इज चोक, चोक इज, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं एक बार, बैलास्टिक चोक बोलते हैं इसको, और फिर ट्यूबलाइट को रन करने के लिए 220 वोल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, कभी 40 की जरूरत पड़ती है, कभी 80 की, कभी 110 की। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से नहीं रोकते, हम चोक लगा देते हैं। तो चोक से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है पर लॉस नहीं होता, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। 40 वॉट का बल्ब, 40 वॉट की ट्यूबलाइट, लगभग 50% एफिशिएंसी का डिफरेंस आ जाता है। दैट्स व्हाई प्रेफर किया जाता है वी शुड यूज ट्यूबलाइट। उसके दो फायदे हैं, एक तो लॉस का है, दूसरा व्हाइट कलर की लाइट है। ऑलराइट, दिस इज प्योर इंडक्टेंस। Now refer the booklet AC through pure resistance R. I is equal to I naught sin omega t, I0 is E by R, and so on. Note is there is no leading and no lagging between current and voltage in pure resistance. Phi equal to 0, power factor cos phi is unity. AC through pure inductance L, ये भी हमने derive कर लिया. XL is inductive reactance, unit is ohm, and dimension are ml square t minus 3 a minus 2. जो मेथड आप रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालने के लिए करते हैं, सेम इज फॉर इंडक्टेंस. एक्सएल इज 0 फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट. अगर रेजिस्टेंस इसका प्योर रेजिस्टेंस है, देयर इज नो इंडक्टेंस, तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल. इसकी वैल्यू दो कंडीशंस में 0 होती है. व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0, फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब डीसी हो, या फिर एल की वैल्यू 0 हो. एल की वैल्यू 0 मतलब इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0. दोनों कंडीशंस में एक्सएल की वैल्यू 0 ली जाती है. There is a phase difference of 90 degree produced between current and voltage. Current lags behind the voltage by an angle of pi by 2. For pure inductor, phi is equal to 90 degree. Power factor cos phi is 0. Inductance blocks AC but passes DC. AC अगर है उसको रोकेगा,
डीसी है, सीधी चली आ रही है तो निकल जाती है, पास कर जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर इंडक्टेंस इज जीरो। चोक कॉइल, हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हैविंग पावर फैक्टर नियरली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। फेज एंगल इज नियरली 90 डिग्री। Q factor of a coil, Q factor stands for quality factor of a coil। कोई भी कॉइल है, जैसे चोक कॉइल आपने ली थी, आप क्या चाहते हैं इस कॉइल से कि इसका इंडक्टेंस तो बहुत ज्यादा हो, इसका जो एक्सेल है वो बहुत ज्यादा हो, पर इसका जो रेजिस्टेंस है इस वायर का वो जितना मिनिमम से मिनिमम हो उतना अच्छा है। सो Q factor of a coil, it is defined as XL divided by R। हम चाहेंगे XL जितना ज्यादा हो, R should be minimum। XL is omega L and what is R? It is resistance of this wire, so it is defined as। इसकी definition भी होती है, the two frequencies omega R plus R by 2L and omega R minus R by 2L on the two sides of the resonance, resonance आगे अपन पढ़ेंगे, where the current has fallen to 1 upon root 2 times the maximum are separated by a frequency that is 2 delta omega is equal to R by 2L। हम चाहें तो इसमें ऊपर और नीचे ओमेगा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्यू फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, राइट? दैट इज R by L। नेक्स्ट इज AC through pure capacitance। This is the diagram, capacitance, pure capacitance C, applied voltage V is equal to Vm sin omega t is taken as reference in all रेजिस्टेंस में, इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में। AC सोर्स, द पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाइड और प्रोड्यूस्ड अक्रॉस कैपेसिटेंस इज VC। इस कैपेसिटेंस के लिए एक रिलेशन था मेरे पास, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू CV। इंस्टेंटेनियस चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी, इट इज C, इट इज कांस्टेंट, एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, d बाय dt ऑफ Q इज इक्वल टू C इज कांस्टेंट, dV बाय dt। व्हाट इज dQ बाय dt? करंट, इट इज I इज इक्वल टू C एंड d बाय dt ऑफ, ये वोल्टेज वही है जो आपने अप्लाई किए हुए थे इंस्टेंटेनियस। इसकी इक्वेशन डाल दीजिए, Vm sin of omega t। current equation is equal to C, Vm is constant taken out of the integration। sin omega t का डिफरेंशिएशन कितना? cos omega t into omega। current is Vm upon C को मैं नीचे लेके जा रहा हूं 1 अपॉन के, और ओमेगा जो बच्चा इसमें मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा सी को इस तरह से लिखिए ले जा करके, cos ओमेगा टी। ये सिंपल पॉजिटिव कॉस है, इसको आप लिखिए कैसे? इट इज Vm, और ये जो चीज थी इस बिहेवियर इट्स बिहेवियर इज लाइक रेजिस्टेंस, इसको अपन XC बोलेंगे। ओके, कॉस को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस, इस बार 90 प्लस लिखना ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि I इज इक्वल टू, इट इज Im साइन, आगे लिख लीजिए ओमेगा टी को और पीछे लिखिए प्लस पाई बाय 2 को। दिस इज करंट इक्वेशन फॉर प्योर कैपेसिटेंस। इन प्योर कैपेसिटेंस current leads ahead the voltage by an angle of 90 degree pi by 2। अगर आपने वोल्टेज की वेव फॉर्म को इस तरह से प्लॉट किया, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो करंट जो है वो 90 डिग्री आगे चल रही है, मतलब पहले से स्टार्ट हो रही है। यहां इस तरह से करंट का वेव फॉर्म बनेगा, इट विल बी लाइक दिस,
ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम, वोल्टेज को अगर आपने फेजर डायग्राम में इस तरह से प्लॉट किया, दिस इज वोल्टेज, करंट आगे चल रही है, आगे चल रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव, ये फेजर डायग्राम आ गया। वोल्टेज और करंट को डिनोट करता हुआ वो ये बता रहा है कि करंट इज लीडिंग अहेड द वोल्टेज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे बोले, देखिए किसी भी सर्किल में अगर पीरियोडिक फंक्शन है ना दोनों, वोल्टेज यहां पर है किसी समय, इंडक्टेंस में करंट यहां मिलती है आपको, और कैपेसिटेंस में करंट आगे मिलती है, यहां पर मिलती है। या तो आप इसको बोले कि 90 डिग्री पीछे, आईसी को बोले 90 डिग्री आगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज 270 डिग्री लैगिंग, 270 डिग्री लैगिंग ऐसा भी बोल सकते हैं, पर जनरली होता एक्चुअली यही है, बट वी प्रेफर 90 डिग्री लीडिंग बोलना हम ज्यादा पसंद करते हैं। सो व्हाट इज इट, दिस इज द इक्वेशन। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, cos pi by 2, what is the power factor of the pure capacitive circuit? Power factor is equal to cos pi by 2. What is cos pi by 2? 0. Again, in pure capacitance, no power is dissipated. Very, very important. XC, it is called capacitive reactance. Its value is 1 upon omega c. Omega is 2 pi into nu. देखिए XC का बिहेवियर कैसा है। If it is pure DC means frequency 0. When frequency is 0, मतलब pure DC, what is the value of XC? Tending to infinity. और AC मतलब प्योर AC, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, टेंडिंग टू इंफिनिटी। व्हाट इज XC? XC इज 0. द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इज अपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्टर. इंडक्टर ब्लॉक्स AC, passes DC. कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, passes AC. वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये वायर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के लगे होते हैं इंडक्टेंस में। DC आती है, DC स्ट्रेट लाइन होती है, बीच में गैप होता है, सीधे निकल करके चली जाती है, सीधे चली जाती है। इंडक्टर पासेस DC, है ना। DC की जो वेव फॉर्म बनाते थे आप, ऐसी बनाते थे ना। AC क्या है, उछल उछल करके आती है, उलझ जाती है, इसमें पास ही नहीं हो पाती है, उलझ के गिर जाती है। ठीक। कैपेसिटर व्हाट बिहेवियर, DC इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी आएगी, प्लेट से टकरा करके गिर जाएगी। कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। AC कैसी होती है, चंचल होती है, ये निकल गई। कैपेसिटर पासेस AC. सो इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं। रिफर द बुकलेट। AC थ्रू प्योर कैपेसिटिव रिएक्ट XC is 1 upon omega c, 1 upon 2 pi FC. If V is Vm sin omega t, then I is equal to I naught या Im sin omega t plus pi by 2. I naught is x E naught upon XC, or it is E naught upon 1 upon omega c. Phase angle is plus pi by 2. XC is capacitive reactance, its unit is ohm and dimensions are ml square t minus 3 a minus 2. XC is 0 for pure capacitive circuit. Pure DC circuit. It is not pure capacitive, it is for DC circuit. There is a phase difference of 90 degree produced between current and voltage.
current leads ahead the voltage by an angle of pi by 2. For pure capacitor, phi is 90 degrees, so power factor cos phi is 0. Capacitance blocks DC but passes AC. Average power dissipation in pure capacitive circuit is also 0. P is equal to 0. Concept is AC circuit with resistance and inductance connected in series. मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूं, फिर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस डिस्कस करूंगा, फिर तीनों को सीरीज में अपन लगा करके डिस्कस करेंगे. So resistance and inductance connected in series, it is called RL circuit. R for resistance, L for inductance. Second आएगा AC through RC circuit. Third one is the most important one, RLC circuit. Resistance, inductance and capacitance. So first देखिए behavior. Resistance and inductance connected in series across an AC source. V is equal to Vm sin omega t. Voltage is this source. Because they are connected in series, so current passing through the two elements will be same. Series में लगे हुए हैं, current same होगी. When current passes through the resistance, the voltage across the resistance developed, it is VR. The voltage developed across the inductance, it is VL. individual. अभी हम इसकी combined study करेंगे. How to do? What is VR? Formula I into R. या अगर मैं RMS की बात करूंगा तो what is VR? VR is I, that is through the resistance, into R, and RMS voltage across the resistance is current passing into resistance, it is R. First. Second, inductance के across VL, what is the relation? It is I into XL. या मैं RMS voltage की बात करूंगा, so it is VL. VL is equal to current through the inductance into the value of reactance, it is XL, और simple VL is equal to I तो same है, दोनों में same है, into XL. ये voltage drop हो गया across the resistance, across the inductance. Clear? Okay. Now, अगर आप इन दोनों में VR के साथ R का मतलब वोल्टेज और करंट का बिहेवियर देखते तो वोल्टेज इस डायरेक्शन में था VR, है ना. सो करंट क्या थी? करंट रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में होती थी, दैट इज I. इंडक्टेंस में ये वोल्टेज का डायरेक्शन होता था अगर V. सो करंट क्या करती थी? लेग्स बिहाइंड, पीछे चलती थी, ये करंट का डायरेक्शन होता था I. लेकिन यहां पर क्या है? वोल्टेज सेम नहीं है, ये भी और ये भी सेम नहीं है, करंट सेम है, करंट फ्लोइंग इज सेम, दोनों में एक ही करंट जा रही है, एक साथ इंक्रीज होती है, एक साथ डिक्रीज होती है. तो इसी डायग्राम को मैं अगर कंबाइंड बनाना चाहूं एक ही साथ, तो मैं क्या करता हूं? करंट को रेफरेंस लेता हूं, करंट I flowing through them is same. Okay, this is the direction of current. VR, voltage across resistance, ये हो गया VR का डायरेक्शन. What is VL? करंट लेग्स बिहाइंड, या बोलिए तो वोल्टेज लीड्स अहेड. तो VL की जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, करंट से 90 डिग्री आगे. ऑलराइट. अगर मैं RMS में कैलकुलेशन करूं तो इट इज इजियर, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए मेरे को RMS की जरूरत पड़ेगी. तो मैंने VR और VL लिखा, ये VL की डायरेक्शन है, ये VR की डायरेक्शन है. अगर आपको बोलेंगे कि व्हाट इज द टोटल अप्लाइड वोल्टेज, तो क्या आप डायरेक्ट दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या?
नहीं ऐड कर सकते, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। फिर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। ये VL और ये VR 90 डिग्री का एंगल है, सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, diagonal will represent the value of V, or here what is V? Pythagoras theorem, V is equal to VR square plus VL square, most important। ये रहा रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रहा रिजल्टेंट करंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं फेज एंगल फाई। सो इन दिस ट्रायंगल वोल्टेज डायग्राम आपने बनाया है, ये VR है इतना, ये VL है, VL मतलब ये भी VL है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू VL, दिस इज V। आपको पावर फैक्टर चाहिए इस सर्किट का, व्हाट इज पावर फैक्टर, cos phi। in this voltage triangle what is cos phi, base that is VR divided by hypotenuse that is V। ध्यान से समझिए, VR divided by V की जगह you can put it is VR square plus VL square, this is the power factor of the circuit। अगर मैं इस ट्रायंगल को रीड्रॉ करूं, VR is equal to I into R, VL, ये वाली साइड को VL बोल सकते हैं, ये साइड VL बोल सकते हैं, एक ही बात है। इट इज I into XL, डायगोनल V is equal to what, ये एंगल था फाई इनके बीच का। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, एक ट्रायंगल मैंने बनाया जिसका परपेंडिकुलर है 3 यूनिट्स, मान लो, जिसका बेस है 4 यूनिट्स, व्हाट इज इट्स हाइपोटेनस, डायगोनल अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 होगा। ये एंगल कितना है, 5। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए डायग्राम फिर से बनाया गया, 3 into 2 इट इज 6, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 into 2 8, क्या डायगोनल भी 5 into 2 10 आएगा क्या, चेक करिए, रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस रूट 8 स्क्वायर 64, 100 का रूट 10, मतलब जिस फैक्टर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इन सब में से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, मैंने V इज इक्वल टू बोला करंट I और एक क्वांटिटी को डिफाइन किया मैंने Z, क्योंकि अभी बताता हूं, एक सेम फैक्टर I मैंने इन तीनों से हटा दिया, ऑलराइट, डायग्राम एज इट इज रहेगा, एंगल एज इट इज रहेगा। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, दिस इज इक्विवेलेंट टू रिएक्टेंस, और ये जो क्वांटिटी आई ये है, मैंने Z बोला इसको, ये क्या है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। This is the combination of resistance as well as reactance, दोनों का मिक्स है, ये मिक्सचर है, इसको नाम दिया गया impedance। This is denoted by Z और इसकी यूनिट भी क्या होगी, ohms। This is called impedance of the circuit। So resultant voltage applied can be written as resultant current into Z. Z is called impedance। Now in this triangle, इस ट्रायंगल impedance ट्रायंगल में, इसमें फाई अगर सेम एंगल है,
So power factor can be written as, most important, base is resistance R divided by hypotenuse is Z. It is equal to R divided by Z क्या है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, and particularly X can be written as R upon under root of R square plus. इस particular condition में what is X? X is omega L. So this is power factor of the circuit.